شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ مرکزی داخلہ سیکریٹری سری نگر کے 2 روزہ دورے کے بعد دلی روانہ۔ سری نگر میں دوسرے روز بھی میٹنگوں میں کی شمولیت۔ برفباری کے 4 روز بعد بھی جموں کشمیر کے کئی دور دراز علاقوں میں سڑکیں بند، بجلی بھی نہیں ہو سکی ہے بحال۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر بغیر پرمٹ کے ٹیکسیاں اور پنجاب کی گاڑیاں رواں دواں، ٹرانسپورٹ محکمہ اور پولیس خاموش۔ مڑوا وڑون میں ڈاکٹروں کی عدم تعیناتی اور غیر حاضری کے نتیجے میں آبادی پریشان۔ مڑوا میں ایک دوشیزہ ہوئی جاں بحق، لوگ سراپا احتجاج۔ اور بھی کئی موضوعات رہیں گے آج کے شہربین میں ایک وقفے کے بعد۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے۔ رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ زندگی کے مشکل موڑ پر کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی کرٹیکل کیئر ایمبولینس سروس ہمیشہ آپ کے لیے دستیاب۔ وادی کے ہر کونے میں ہر ضرورت میں پائیے کرٹیکل کیئر ایمبولینس سروس صرف 25 روپے ہر کلومیٹر پر، سری نگر ایئرپورٹ تک صرف 40 روپے ہر کلومیٹر پر۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی کینسر سوسائٹی آف کشمیر، سری نگر۔ کال 6006095505۔ اپنے بڑھاپے کا خیال آج سے ہی رکھیں۔ اٹل پینشن یوجنا آپ کی پینشن کی سرکشا۔ صرف 42 روپے مہینے سے شروع کر کے پائیں میچورٹی پہ ہر مہینے 1000 سے 5000 تک کی پینشن۔ آرگنائزڈ اور ان آرگنائزڈ دونوں سیکٹرز کے لیے یہ اسکیم سنہرا موقع ہے۔ ابھی جڑیں اور اپنے کل کو سرکشت رکھیں۔ CSR انیشیٹو آف JNK بینک، آپ کا اپنا بینک۔ شیربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، مرکزی داخلہ سیکریٹری گووند موہن آج دوسرے روز بھی سری نگر میں موجود رہے۔ آج انہوں نے شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی قیادت کی، جس میں جموں کشمیر کے سلامتی اور ترقیاتی ایجنڈے پر بات چیت کی گئی۔ میٹنگ میں چیف سیکریٹری اتل ڈولو کے علاوہ سیکورٹی فورسز اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی شامل رہے۔ اطلاعات کے مطابق میٹنگ میں مرکزی اسپانسر شدہ فلیگ شپ اسکیموں، بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے منصوبوں اور خطے میں روزگار کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ مرکزی داخلہ سیکریٹری آج سپہر دلی کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ گزشتہ شام داخلہ سیکریٹری نے لال چوک کے گھنٹہ گھر بلیدان ستمبھ کا بھی دورہ کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز کی میٹنگ میں IB کے ڈائریکٹر تپن کمار ڈیکا، NIA کے ڈائریکٹر سدانند وسنت، DGP BSF دلجیت سنگھ چودھری، CRPF کے DG انیش دیال سنگھ اور جموں کشمیر کے DGP نلین پربھات بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ میں 15ویں کور کے GOC لیفٹیننٹ جنرل پرشانت سریواستو اور GOC 16 کور لیفٹیننٹ جنرل نوین سچدیوا بھی موجود رہے۔ سامعین، وادی کشمیر میں برفباری کے 4 روز بعد بھی سردیوں کی لہر جاری ہے اور اس وجہ سے عام لوگ پریشان ہیں۔ سری نگر میں گزشتہ شب کا کم سے کم درجہ حرارت -3.5 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ منفی درجہ حرارت میں وادی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -11.5 ڈگری، پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت -8.4 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند دنوں میں درمیانی درجے کی مغربی ہواؤں کے زیر اثر وادی میں 3 سے 6 جنوری تک موسم مجموعی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ میدانی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری کی گنجائش ہے، جبکہ اس دوران پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں برفباری بھی ہو سکتی ہے۔
इधर हालिया बर्फबारी के 4 रोज बाद भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अभी तक सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है और नई बिजली सप्लाई बहाल हुई है। इस तरह की इतलात रामबन अजला के दूर दराज इलाकों से भी मौसूल हुई हैं। सरहदी कस्बा उड़ी से मिली इतलात के मुताबिक आरएनबी और पीएमजीएस में एजेंसी ने दूसरे रोज ही सड़कों को बहाल किया। अलबत्ता आबादी का कहना है कि महकमे ने मामूली सतह पर बर्फ हटाकर सड़क को बहाल तो किया, लेकिन ये सड़कें बर्फ दब जाने के नतीजे में आमदोरफ्त के लिए दोबारा बंद हो चुकी हैं और बुनियार की सड़क भी इसमें शामिल है। इधर असेंबली हल्का बानिहाल में मोहमंगत और दीगर कई इलाकों की सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं। 4 रोज गुजरने के बावजूद बिजली भी इन इलाकों में मुतासिर है। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक वजीर वकार रसूलवानी ने कहा कि आला अफसरान जो कुछ मीडिया में कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है और जमीन सतह के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जी मकसूद साहब, जहां तक मोहमंगत एरिया से खबर आई है, बावा तक भी अभी तक रोड नहीं पहुंचा है, क्योंकि मोहमंगत में 2-2.5 फीट बर्फ पड़ी थी और 4 दिन बर्फबारी के बाद भी अभी तक रोड जो है रेस्टोर नहीं हुआ, बिजली जो है रेस्टोर नहीं हुई। इसी तरह से गूल का जो भीमदासा इलाका है वहां भी रोड बंद है, बिजली बंद है। इसी तरह से पूरे बानहाल में खासकर नील, पोगल, मोहमंगत, इनमें चमलवास भी अभी तक बिजली नहीं बहाल हुई है और बिजली अगर आई भी है तो बिल्कुल सिंगल है और 10-15 मिनट ठहर के उसके बाद बंद हो जाती है। तो बहुत ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है हमारे लोगों का। जैसा कि आपने रोड की बात कही, तो पोगल मलीगाम जो रोड जाता है वहां नालड़ा के करीब जो है बहुत ज्यादा बर्फ और कोहरा लगा हुआ है, वहां भी गाड़ी नहीं चल पा रही है। तो मुझे लग रहा है कि लोग बहुत परेशान हैं। काफी जगहों पे अभी तक ना बिजली रेस्टोर हुई है, ना अभी रोड रेस्टोर हुए हैं। 4 दिन बर्फबारी को गुजरे हैं। तो हम भी सोचते थे कि चलो 2 दिन एडमिनिस्ट्रेशन को मिले ताकि वो काम करे, लेकिन 4 दिन होने के बाद भी हमारे इलाकों में लोग परेशान हैं। बिजली, पानी, सड़क जो है उसकी बहुत मुश्किलात है और खासकर बिजली का जो वोल्टेज है वो बहुत सिंगल है, फ्लैमेंट भी नजर नहीं आता है बल्ब में और आगे चली जाती है, आंख मचोली का काम करती है। काफी एरियो में अभी रेस्टोर भी नहीं हुई है, खासकर मोहमंगत, भीमदासा, गूल के जो अपर एरियाज हैं इनमें भी अभी तक रेस्टोरेशन का काम हुआ ही नहीं है बिजली का। 2 रोज पहले जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक रिव्यू मीटिंग ली, ऑनलाइन तमाम जिला अफसरान के साथ, मेंबरान असेंबली के साथ बातचीत की, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी ग्राउंड सिचुएशन जो है वो उसके बरक्स है। नहीं, वो तो मीटिंग ही थी खाली, लेकिन जमीनी सतह पे जो हालात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नील का जो चमलवास नील रोड है वो रेस्टोर हुआ है, लेकिन गाड़ी अभी तक भी उस पर चली नहीं। इसी तरह से नील एरिया में लाइट आंख मचोली का काम कर रही है, सिंगल पावर है। इसी तरह से बनाल के इलाकों में सिंगल पावर चल रहा है। मोहमंगत में तो बिजली अभी तक रेस्टोर ही नहीं हुई, सड़क भी अभी तक रेस्टोर नहीं हुई। तो ये जमीनी सतह की बातें मैं कह रहा हूँ जो है, क्योंकि 4 दिन हुए हैं अगर चीफ मिनिस्टर ने ली है, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें नहीं हुई हैं। लोग परेशान हैं, लोगों की हालात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे फीडबैक मिला है, जो मुझे फोन पे बात हुई है, जो मुझे लोगों से राब्ता हुआ है, जो लोग मुझे मिले हैं, ये वो सिचुएशन में अपनी बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं आपको सुना रहा हूँ। 4 रोज की बर्फबारी के बाद भी असेंबली हल्का इंतखाब बानिहाल में सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ सकी है। प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी का बयान। इधर गुरेज की आबादी का कहना है कि नीरू नाला सफेदाब सड़क अभी भी आमदोरफ्त के लिए बंद पड़ी है। हालांकि तुलील की सड़क को बहाल किया गया है, लेकिन सफेदाब सड़क से अभी तक बर्फ नहीं हटाई गई है। मकामी लोगों ने फौरी तौर नीरू नाला सफेदाब सड़क को बहाल करने का मुतालबा किया है। इधर बाज इलाकों में भारी बर्फबारी हुई और इसके नतीजे में इन इलाकों में लोग गुनागो मसाइल से दुचार है। मड़वा, वडवन, दक्षिण और पाडर इलाकों की आबादी को इन दिनों तिब्बी सहूलियात के साथ साथ दीगर सहूलियात का फुकदान है और सरमा के नयाम में इन इलाकों में लोग गुनागो मसाइल से गुजर रहे हैं, जबकि मड़वा वडवन में बेशतर अफसरान ड्यूटी से गैर हाजिर बताए जा रहे हैं। यहां तक कि अस्पतालों में डॉक्टर भी दस्तयाब नहीं है। गुज़श्ता रोज हमने मड़वा धरना के लोगों का एहतजाज भी प्रोग्राम में नष्ट किया था, क्योंकि वहां एक लड़की शदीद बीमार थी। बताया जाता है कि आज सवेरे इस लड़की की मौत हुई है। हालांकि दहरना प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक डॉक्टर कागजी तौर तैनात है, लेकिन बीएमओ ने इस डॉक्टर को किसी दूसरी जगह अटैच कर रखा है। अब हद यह है कि लड़की की मौत के बाद भी डॉक्टर को वापस तैनात नहीं किया गया है और अटैचमेंट का यह ऑर्डर सीएमओ ने जारी किया था। डीडीसी मड़वा शेख जफरुल्लाह ने आज शाम शहरबीन को बताया कि मड़वा वडवन के बेशतर मुलाजमीन और अफसरान को जिला इंतजामिया ने दीगर मकामात पर अटैच कर रखा है और यही वजह है कि दहरना प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर की गैर मौजूदगी की वजह से एक लड़की की जान चली गई। असल में
प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता भी करते हैं कि जो विंटर्स हैं इसमें खसूसी एक रोड मैप बनाया जाए मड़वा वार्ड 1 के लिए, क्योंकि ये फार फ्लंग एरियाज हैं। यहाँ पर खास करके जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो इनसफिशिएंट है, और जो स्टाफ मेंबर्स बाहर के ज्यादातर हैं वो मड़वा और वार्ड 1 के इलाकों में ड्यूटी पर ज्यादा नहीं जाते हैं। जो भी लोकल स्टाफ है उन्हीं को इधर से उधर से इधर मोबिलाइज किया जाता है। जो स्टाफ मेंबर्स बाहर से आते हैं उनको अपनी मर्जी से, कभी मर्जी आई तो जाते हैं, नहीं आई तो नहीं जाते हैं। और कल जो देहरना में वाकया पेश आया, वो एक लड़की बेचारी इसी वजह से जान अपनी गंवा बैठी क्योंकि वहां पर वक्त पर जो हमारे पोस्टेड डॉक्टर हैं, डॉक्टर इरफान साहब, वो वहां पर नहीं थे। अब वो रोस्टर के हिसाब से सीएचसी मड़वा में ड्यूटी करते हैं, जबकि उनका ऑर्डर, जो ओरिजिनल ऑर्डर है, वो देहरना पीएचसी के लिए है। तो अभी जो ऑर्डर आया मुझे सीएमओ साहब ने और बीएमओ साहब ने सेंड किया कि उनका अब ओरिजिनल प्लेस पर फिर से ऑर्डर किया गया है, लेकिन अब जाहिर सी बात है उससे पहले जो होना था वो नहीं हुआ और एक लड़की की डेथ हुई। 2 साल से मैं बीएमओ साहब को भी बोल रहा हूँ, सीएमओ साहब को भी, कि प्लीज उनका ऑर्डर ओरिजिनल प्लेस पे कर दीजिए, लेकिन नहीं कर रहे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है, लापरवाहियां कर रही है, और किसी जगह पर जान जाती है, फिर उसके बाद ऑर्डर किए जाते हैं, फिर उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाता है। तो आज फिर से बीएमओ साहब ने अभी ऑर्डर किया, लेकिन मुझे जिस तरह से आज तक इन्होंने किया, मुझे लगता है कि ये फिर से इसको सिर्फ कागजी तौर पर दिखाएंगे, बाद में फिर इसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। तो आप इस वक्त हमारी आवाज बनते हैं, आपकी वसाकत से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर मड़वा में वार्ड 1 में इस वक्त स्टाफ जो मेंबर्स है, मेडिकल स्टाफ मेंबर्स हैं, अगर वो वहां पर नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए और उनकी सैलरी रोकी जाए ताकि लोग सफर ना करें। और अगर कोई ड्यूटी नहीं देना चाहते उसको नौकरी से निकालें, क्योंकि ये हमारे वहां से सैलरियां निकालते हैं, बैठते हैं शहरों में, लेकिन जिन पेशेंट्स की वजह से इनको नौकरी मिलती है उन पेशेंट्स को देखने वाला कोई नहीं होता है। तो देहरना में कल ये मामला पेश आया है और इसी तरह बहुत सारी जगहों पर इससे पहले भी वाकयात पेश आए, लेकिन नेग्लिजेंस जो डिपार्टमेंट की तरफ से होता है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं चाहूंगा कि आप भी डीसी साहब को फोन कॉल पर लेकर उनसे पूछें कि आखिर आपके डिस्ट्रिक्ट में ये जो इधर से उधर स्टाफ मेंबर्स को किया जाता है, क्यों किया जाता है, और वो अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर क्यों नहीं ड्यूटी करते। ये थे डीडीसी मड़वा शेख सफरुल्लाह। इधर किश्तवाड़ के ब्लॉक बांजवा से मिली इतलात के मुताबिक नूरता केतर सड़क जो ब्लॉक बांजवा में है पर बर्फ हटाने का काम ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन उसने मुनासिब तरीके पर बर्फ नहीं हटाई है और अभी भी बड़ी मिकदार में बर्फ सड़क पर ही मौजूद है और इस वजह से लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। बताया जाता है कि बर्फ हटाने के लिए ठेकेदार ने दांतों वाली बकेट का इस्तेमाल किया है और इस वजह से सड़क को भी नुकसान पहुंचा है और सड़क को ठीक करने में अब ज़र कसीर दरकार होगा। मकामी लोगों का मुतालबा है कि इस मामले की तहकीकात की जाए। बारामूला से मिली इत्तलात के मुताबिक कस्बे में कई इलाकों में इन दिनों पीने के पानी की शदीद किल्लत है और इस वजह से आबादी को गूनागू मसाइल का सामना है। कांठबाग बारामूला में गुज़श्ता चंद रोज से पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर है। हालांकि महकमे को बार बार आगाह किया गया, लेकिन अभी तक टैंकर सर्विस भी दस्तियाब नहीं कराई गई है। मस्जिद सुल्तान के नजदीक रहने वाले लोगों का कहना है कि 1 हफ्ते से उनके नल सूख चुके हैं और महकमा टस से मस नहीं हो रहा है। कांठबाग की आबादी ने इलाके में फौरी तौर पीने के पानी की सप्लाई बहाल कराने का मुतालबा किया है। इधर मांगाम चाडोरा के बाशिंदे भी शिकायत कर रहे हैं कि इलाके को गुज़श्ता 1 हफ्ते से पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है और इस वजह से सार्फिन को सर्दियों के इस मौसम में शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। मांगाम के बाशिंदों ने जल शक्ति महकमे से अपील की है कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर इकदाम किए जाएं। शरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शहरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत के कायम के साथ ही अफसरशाही की कमर टूट गई है और सारी इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। इन बातों का
इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए आवामी वफूद और पार्टी अहदेदारों से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को साल 2018 के बाद अफसरशाही में सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि अफसरशाही के दौर में लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं था। अब एक और मौजूद सामिन महकमा तालीम में अभी तक ऑनलाइन तरीके पर तदरीसी अमले की सालाना ट्रांसफर का अमल मुकम्मल नहीं हो सका है, जबकि इस हवाले से तमाम तर लवाजमात जून जुलाई में ही मुकम्मल हो चुके हैं। सामीन को याद ही होगा कि महकमा तालीम ने चंद बरस कबल तदरीसी अमले की तब्दीली के लिए ATDS निज़ाम राइज किया था, लेकिन ये निज़ाम अभी तक पटरी पर नहीं आ सका है। महकमा तालीम ने इस मकसद से वादी में नए स्कूली जोन कायम किए जो कि आज भी काबिल बहस हैं। दूर दराज इलाकों खासतौर बर्फबारी से मुतासिर होने वाले इलाकों को महकमे की तरफ से जोन 5 में रखा गया है, जहां अमले को सिर्फ 1 साल तक ही तैनात किया जा सकता है। गुज़श्ता बरस जिन असातिज़ा, मास्टर्स या लेक्चरर्स को जोन 5 में तब्दील किया गया है वो कई माह कबल अपनी 1 साला मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं और गुज़श्ता 6 माह से अपनी तब्दीली के इंतजार में हैं, मगर महकमे ने अभी तक तब्दीली के अमल को मुकम्मल कराने के मकसद से कार्रवाई शुरू नहीं की है। जबकि जोन 5 में तैनात अमला परेशान है कि अगर वक्त पर तब्दीली का काम अंजाम नहीं दिया जाता तो उन्हें मार्च के बाद भी घरों से दूर ही मजीद 1 साल ड्यूटी देना होगी। जोन 5 के असातिज़ा गुज़श्ता चंद माह से इस हवाले से काफी तगदो कर रहे हैं, जबकि शहरबीन ने भी ये मामला वजीर तालीम के साथ उठाया था, जहां से यकीन दहानी दी गई थी कि सरमाई तातीलात के अंदर ही ये काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। पर मुतल्लिका असातिज़ा के मुताबिक इस हवाले से अभी तक बुनियादी काम भी शुरू नहीं हुआ है। आज जोन 5 में तैनात असातिज़ा एक बार फिर शहरबीन आए और वजीर तालीम तक अपनी फरियाद अपनी ही आवाज में पहुंचाने की कोशिश की। अब ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है इसका फैसला वक्त करेगा। एक्चुअली सर हम जोन 5 के टीचर्स हैं और जो पिछले साल ATD पॉलिसी 2023 के तहत हमें ट्रांसफर किया गया, तो हमारी जो मुद्दत थी वो 1 साल थी हार्ड जोन में, और चूंकि इस साल भी सरकार ने जुलाई 2024 में ATD की जो लिंक निकाली थी तो उसमें हमने अप्लाई भी किया था, तो तब से लेके आज तक कहीं पे भी कोई ATD प्रोसेस को वो अमल दरामद तो नहीं हुई और वो न कंप्लीट हुई है। तो इसलिए सर क्योंकि वहाँ पे काफी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है हार्ड जोन में, क्योंकि अगर सर आप देखोगे यहाँ पे गुरेज साइड में जो तुलेल वाला जो इलाका है वो काफी सख्त वाला इलाका है, तो बर्फबारी में भी हमने इस साल जो हमारी जो मुद्दत थी सर वो 6 महीने ज्यादा हो चुकी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें एश्योरेंस मिली थी कि 1 साल मुद्दत कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से वापस लाया जाएगा, मगर वो 1 साल तो हमने कंप्लीट किया है, हमारा 1.5 साल भी हो गया है, तो अभी तक उस पर कोई भी वो अमल नहीं हो रही है। तो अब हम सर आपकी वसातत से गवर्नमेंट तक या आला हुकाम तक, जिनमें हमारी मैडम जी है और हमारे डायरेक्टर साहब है या हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे सर हम आपकी वसातत से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि वो हमारी इस ट्रांसफर पॉलिसी पे उसको जल्द अज जल्द अमल दरामद उस पर करें, ताकि जो हमारी जो ट्रांसफर है वो इस जो चूंकि जो सेशन अब नेक्स्ट सेशन आने वाला है उससे पहले वो हो जाएगी सर। जी सर, हम मुख्तलिफ टीचर्स और मास्टर्स जोन 5 में हमें भेजा गया। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी ट्रांसफर पर अमल दरामद किया जाए। हम आपको ये बात भी वाकिफ कराना चाहते हैं कि हम ऐसे टीचर्स हमें उस वक्त वहाँ भेजा गया, हमारे घरों में बहुत सारे मामला हैं, हमारे माँ बाप बहुत बुजुर्ग हैं, या हम में से इतने आधे टीचर ऐसे भी हैं, आधे मास्टर ग्रेड ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट के नजदीक भी पहुंचे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। कोई डायलिसिस पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कार्डियोलॉजी के पेशेंट है, तो मुख्तलिफ हम अपने घरों में किसी के बच्चे भी बहुत बीमार हैं। हमने गवर्नमेंट की तरफ से हमारी जो कमिटमेंट थी गवर्नमेंट ने हमें दी थी कि आप 1 साल के लिए हमें जाना है, हमने उस पर अमल किया। लिहाजा हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी ट्रांसफर पे अमल किया जाए और वो कामयाब की जाए, ताकि हम अपने माँ बाप जो कम बिस्तरी की हालत में है उनकी हम थोड़ी बहुत इस बुढ़ापे की हालत में उनकी खिदमत कर पाए। जी सर, हम हार्ड जोन टीचर्स हैं जो ATD 2023 में डिफरेंट हार्ड जोन में भेजे गए थे, डिफरेंट मुख्तलिफ जिलों में भेजे गए थे। गवर्नमेंट की जानिब से ये कमिटमेंट की गई थी कि आपको हार्ड जोन में सिर्फ 1 साल देना है। हालांकि बहुत सारे टीचर्स में बहुत सारी मुश्किलात भी है, जैसे कुछ टीचर्स या हमारे साथ कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनके घरों में कैंसर पेशेंट के चाहे वालिदैन हो चाहे उनके बच्चे में किसी तकलीफ हो, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने हमारी इस कमिटमेंट पे कोई अमल दरामद नहीं किया। हम चाहते हैं आपकी वसात से उनको ये बात पहुंच जाए कि हमारी ट्रांसफर को यकीनी बनाया जाए और जल्द से जल्द हमारी ट्रांसफर हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में की जाए।
जोन 5 में तैनात असाजा की वजीर तालीम से फरियाद। पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने न्यू पुलवामा में एनआईटी के नए कैंपस को मुंतकिल करने के सरकारी फैसले की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि यह फैसला बगैर सोचे समझे और किसी सलाह मशवरा के लिया गया है और इसके दूररस मनफी असरात माहौलियात, ज़राअत और मकामी लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। हकीम मोहम्मद यासीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 4,900 कनाल ज़री ज़मीन को इस मकसद से मखसूस करना नाकाबिल फहम है, क्योंकि इलाके में ज़राअत ही लोगों के लिए रोजगार का बुनियादी वसीला है, जबकि इस प्रोजेक्ट से इलाके में माहौलियात पर भी बड़े पैमाने पर मनफी असरात पड़ेंगे और इसके दूररस मनफी असरात होंगे। हकीम मोहम्मद यासीन का कहना है कि तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए जमीन का इंतखाब करते वक्त बुनियादी चीजों को जहन में रखना जरूरी होता है, मगर इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं किया गया है, जो कि काबिल अफसोस है। उन्होंने इस फैसले पर अलसर-ए-नौ नजरसानी का मुतालबा किया है। सामीन, एक सरकारी इतला के मुताबिक वादी कश्मीर में तमाम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस, पैरामेडिकल कॉलेजेस सरमाई तातीलात के लिए कल 1 जनवरी से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे, जबकि जम्मू सूबे में इस तरह के इदारे कल से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। इधर त्राल के एक मारूफ उस्ताद बशीर अहमद शेख की अचानक मौत पर कई सियासी और मजहबी तंजीमों ने दुख का इजहार किया है। वाज़ेह है कि गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में आज एक ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मरहूम बशीर अहमद शेख की खिदमात को याद किया गया और उनके हक में दुआए मगफिरत की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर महराजुद्दीन बाफंदा की वालिदा सारा बेगम अहले मरहूम गुलाम मोहम्मद बाफंदा कल 30 दिसंबर को सईद अली अकबर फतेह कदर श्रीनगर में इंतकाल कर गई हैं। उनकी वफात पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्रीनगर के अमले ने ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहुमा के हक में दुआए मगफिरत किए। मरहुमा के हक में इज्तिमाई फातह खानी 2 जनवरी जुमेरात को सुबह 11 बजे सन मस्जिद फतेह कदल में अंजाम दी जाएगी। अब एक और मौजू। सामीन, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इन दिनों एक बड़ी तादाद में छोटी मुसाफिर गाड़ियां बगैर परमिट के चल रही हैं, जिनमें स्विफ्ट, डिजायर, इनोवा और दीगर गाड़ियां भी शामिल हैं। अलबत्ता मुसाफिरों का कहना है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस एहलकार इन गाड़ियों को रोककर तंग तलब करते हैं और बाद में इन्हें छोड़ दिया जाता है। छोड़ क्यों दिया जाता है, ये भी काबिल बहस है। अवामी हल्के हैरान है कि जम्मू बस अड्डे से कैसे बगैर परमिट के गाड़ियों को कौमी शाहराह पर चलने की इजाजत दी जाती है। अवामी हल्कों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस और बगैर परमिट मुसाफिर गाड़ियों के मालिकान के दरमियान कोई साजबाज है और इसी के नतीजे में ऐसी गाड़ियों पर कोई कदगन नहीं लगाई जा रही है। इस दौरान ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह ने आज शाम शहरबीन को बताया कि पंजाब और दीगर कई रियासतों की गाड़ियां भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गैर कानूनी तौर चल रही हैं, जबकि हमने कई बार ट्रांसपोर्ट महकमा और ट्रैफिक पुलिस की नोटिस में भी ये मामला लाया है, कार्रवाई नहीं हुई है। पहले तो मैं क्लियर करूंगा जो मुझे मुद्दा बता रहे हैं आप, ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है ना, जिसमें चाहे टैक्सी है, बसेस है, मिनी बसेस है और छोटी गाड़ियां, उसमें तो हमारी गाड़ियों के बिना परमिट के तो गाड़ी चलती नहीं। रही बात जैसे कुछ गाड़ियां पंजाब से आती हैं, वो यहाँ रेस्ट रहती हैं, वो ना तो वो वापस पंजाब जाती हैं बस स्टैंड से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू श्रीनगर, क्योंकि एक तो सरकार का वो टैक्स खाती हैं, दूसरा वो क्योंकि जब कोई गाड़ी बाहर से आती हो, अगर 1 हफ्ते का टूर लेके आएगी, 5 दिन का टूर लेके आएगी, तो वो उसको वापस जाना पड़ता है। लेकिन वो गाड़ियां कुछ है जैसे पीवी नंबर हो, HR नंबर। लेकिन आज वैसे भी हमारी मीटिंग थी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से। हाँ, बीच में अगर कोई गाड़ियां हैं जैसे कोई प्राइवेट गाड़ियां भी लोगों ने हायर करके रखी हुई हैं, अगर कोई एजेंसी है, चाहे कुछ लोग जैसे मेरे पास कोई टैक्सी है, तो अगर मेरे पास सवारी है तो प्राइवेट गाड़ी को कोई बोलता है जनाब दूसरी गाड़ी है कोई, तो किसी की स्कॉर्पियो भेज दी, किसी का वो लोग जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट के अंडर नहीं है वो, क्योंकि प्राइवेट अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको उस पर तो फिर सरकार को नजर रखनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस आप देखिए जम्मू से लेके कश्मीर तक मुझे लगता है 40-50 नाके हैं, तो उनको वेरीफाई करना चाहिए। अगर सवारी बैठाई है उन्होंने, एक तो देखिए सवारी भी तो उन्होंने बैठाई, और बिजनेस किसका खा रहे हैं, बिजनेस तो हमारा ट्रांसपोर्टरों का खा रहे हैं ना। वो कितनी तादाद में आप देखिए यहाँ टैक्सी, टेम्पो ट्रैवल और रेस्ट में रहती हैं जिनका नंबर ही नहीं आता है। तो ये जो प्राइवेट जो गाड़ियां हैं अगर कर रही है तो आप देखिए नाका पुलिस का कितना नाका है कश्मीर तक, ट्रैफिक का कितना नाका है, RTO डिपार्टमेंट ने भी नाके लगाए होते हैं, तो वो उसको इनको थोड़ा चाहिए कि उनको चेक करें। अगर कहीं पुरानी, जैसे मैंने कहा कि पंजाब से कुछ गाड़ियां आती हैं, वो यहाँ से वो एक तो हमारा बिजनेस खाती है, वो
जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू वापस तो वो जाते नहीं है, टैक्स भी सरकार का वो खा रहे हैं। जब जाएंगे तो उनको कौन चेक कर रहा है यहाँ की टैक्स दिया इन्होंने नहीं। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, जो ये बगैर परमिट के जो टैक्सियां चल रही हैं, छोटी गाड़ियां चल रही हैं, उनका तो ट्रैफिक पुलिस के साथ साजबाज है। देखिए, मैंने जैसा कहा, जो हमारी ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में जितनी भी गाड़ियां हैं, एक तो वो बिना परमिट के नहीं है। अब जैसा मैंने कहा, जो कुछ गाड़ियां हैं जिन्होंने ये, जैसा मैं कहूंगा कि अगर कोई मान लीजिए कोई वहाँ कश्मीर में कोई ट्रैवल एजेंसी चला रहा है, वो प्राइवेट गाड़ियों के साथ उनका अगर कोई लिंक है, तो सरकार को नजर चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का भी तो बिजनेस चौपट कर रही है ना वो। लेकिन आप भी तो ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं ना? क्यों नहीं करते? हमने बड़ी बार, आज भी हमने हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से मीटिंग थी। ये जो इलीगल गाड़ियां चलती है, डिस्ट्रिक्टों के बाहर की गाड़ियां भी, अब देखिए कुछ गाड़ियां ऐसी रहती है जिनका जम्मू कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, जो टैक्सी वाला अगर कहीं का रूट है ऑल J&K का, तो वो फिर चलता है वो पूरे J&K में। उसी तरह हमारे जो परमिट हैं दूसरे ऑल इंडिया, वो गाड़ी ऑल इंडिया लेवल पे वो कहीं भी जा सकती है। मगर ये जो कुछ गाड़ियां जैसे प्राइवेट चलती हैं गाड़ियां, उनको सरकार को हमने बड़ी बार ये भी कहा है कि उनको पकड़ा जाए। लेकिन जो बीच का आप देखिए, श्रीनगर और जम्मू 300 किलोमीटर है, तो इतनी फोर्स है। हमने बड़ी बार बोला, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बोला, लेकिन ट्रैफिक पुलिस, दूसरी नाके आप देखिए, उनको चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, क्योंकि एक तो वो कल को कहीं अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई, तो आ जाके फिर वो तलवार ट्रांसपोर्टरों पे ही गिरती है। श्रीनगर जम्मू कौमी पर बगैर परमिट के छोटी गाड़ियों का चलना जारी है। बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह। सामीन, आज 31 दिसंबर है और कल से नया साल शुरू हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नए साल की मुबारकबाद दी है और कहा है कि 2025 में जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत नसीब हो। मैं दुआगो हूँ। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के साबिक एमएलसी एस धर्मवीर सिंह ओबराय को उनकी 8वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। हजरत निकी बाबा ऋषि का उर्स कल बुधवार 1 जनवरी को लालपोरा, वांखिल, खारखल, कुंजर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर खदमात मौजूमात की मजलिस का भी एहतमाम रहेगा, जिसमें अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्के है। बैंक कॉलोनी, पालपोरा, नूरबाग, श्रीनगर से बाज मरीजों ने शहरबीन को टेलीफोन पर बताया कि वो ऑक्सीजन मशीनों के सहारे जिंदा हैं, मगर बिजली की नाकाबिल बर्दाश्त कटौती और आंख मिचौली के बायस उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। मुतासर लोगों का कहना है कि उन्हें फीडर 2 से बिजली दी जाती है, जिस पर इस कदर लोड रहता है कि उन्हें मिनटों के हिसाब से भी बिजली नहीं मिल पाती और वक्फे से बिजली का आना जाना जारी रहता है। बैंक कॉलोनी, पालपोरा, नूरबाग के बाशिंदों ने बिजली हुक्काम से अपील की है कि उन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली दी जाए और अगर मुमकिन हो सके तो किसी दूसरे फीडर के साथ जोड़ा जाए। इधर जिला पुलवामा के गुलजारपोरा, बांडरपुर